Now, 5 key are the special training requirements certain vessels, that is master ratings and officer on OCTF course का था. Next was for LPG. Next was for passenger ships. Ro-ro vessels का delete कर दिया है. Then your tanker firefighting को include किया गया है, which is added to advanced firefighting, AFFA. Then watch keeping chapter 8 में regulation 8/1 is fitness for duty, तो यहाँ rest periods को include किया गया है, so that it is for vessel for the people who are doing duties for prevention of pollution and security. Code A जो है that is mandatory. So section A 1/3, which is new, which is for new coastal voyages, which is for masters and officers. And section A 1/9 is medical standards, जिसमें आपका न्यू फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट आया है, प्लस मिनिमम इन सर्विस आई स्टैंडर्ड्स आए. सो दीज आर द न्यू items which has been added to the STCW. In section A1/14 is responsibilities of company. That's under chapter 1, which is company should have the responsibility for familiarization course training to be done for people assigned duties on board passenger ships. Then function navigation at operational level, that is for second officer, up to second officer. The use of information from navigational equipment, that is when you're maintaining a safe navigation watch. Blind pilotage techniques. तो RANSCO कोर्स अभी आपका इंक्लूड हो गया है. सो इफ यू नो, आप लोगों को जस्ट बिफोर गिविंग योर ओरल्स फॉर चीफ ऑफिसर्स यू हैव टू डू RANSCO कोर्स, जिसमें ब्लाइंड पायलटेज टेक्निक इसका सिमुलेटर में दिखाएंगे. So the use of reporting as per VTS and ship reporting system has been added. Then BRM has been included now, bridge resource management, which was not there earlier. That has been part of new STCW. So allocation, assignment, prioritization of resources, effective communication, and assessment as simulator training for BRM. Plus use of ECDIS. So your competency requirements for ECDIS simulator training has been included in the new STCW 2010. Then section A2/2, that is for your deck officers and masters. Mandatory minimum requirements for certification of masters and chief mates of vessels of 500 gross tonnage and above. There is a new training in VTS. Earlier we used to have DECA and LORAN, that is for navigational plotting. इसके अलग अलग चार्ट्स होते थे. अब इसको ऑब्सोलीट बना दिया, इसको हटा दिया. ECDIS को ऐड किया गया है, which is use of simulator as training tool. Then section A2/5, which is seafarer deck, able seafarer deck के लिए new certification requirements are there. So competency requirements are there, which include berthing, anchoring, mooring, and simulator training wherever is required. Plus handling of cargo and stores, इसके लिए भी जो simulator training है, that has been added here. Now chapter 3, that is for engine room or engine department. You have new engine room resource management training, which requires simulator. So that is for the second engineer, chief engineer and more. And importance of proactive measures to protect the environment. So new training requirements are being added here. Now contribution to safe operation of LPG. Any apply occupational health and safety precautions, taking precautions to prevent pollution of marine environment from the release of liquid gases. So simulator training is wherever is appropriate for all above. Chapter 6 is emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions. So you have security related familiarization training, plus basic security related training, basic knowledge of impact of shipping on the marine environment, basic knowledge of complexity and diversity of marine environment. These have been the
courses there which have been added. Specification of minimum standard of competency in security awareness. So these can be done, that is basis chapter 6. So the new training requirements, as a summary, you have electronic officer, electrotechnical officer, cargo engineer, ship safety representative, a basic training for OCTF जो आ गया, then new refresher training in advanced firefighting, new tanker firefighting, security training, pollution prevention, familiarization training for passenger ships, BTS, BRM and engine resource management, leadership and managerial skills, distance and e-learning, which we already started 2 years back, plus BRM, VTS, berthing, anchoring, mooring operation, handling of cargoes and stores, crane operators के लिए. Then for second and chief engineers, you have task and workload management, safe operation of boilers, operation of fuel systems, bilge and ballast water management. So these have been the simulated training wherever required, along with other details. Now we'll be doing what is the rest periods of STCW. तो वो अलग से कराते हैं. जो exceptions है उसमें फर्क है. Now STCW rest hours basically came up with your Manila Convention. Earlier they were not there. So basically ये specify करता है what are your rest hours for officer in watch, for officer in charge of watch or ratings, and which involved safety and prevention, pollution and security duties. तो उनके रेस्ट आवर्स आ गए हैं मिनिमम 10 hours of rest in 24-hour period and 77 hours in 7 days. 7 days means weekly. You have 77 hours of rest. बाकी जो बच गया that is work hours. So work hours maximum can be 40. Rest hours is 10. इतना मिलता तो है नहीं सर. दोनों का यहाँ तक तो सेम है. यहाँ तक MLC और इसका सेम है. और नॉर्मल जो भी बता रहे हैं वहां तक तो सेम है. उसके बाद जो एक्सेप्शंस आएगा वहां चेंज आएगा, वो बता रहे. सो नॉर्मली MLC में भी और STCW में भी यू हैव रेस्ट आवर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 periods. One should be at least of 6 hours and the other should not be less than 1 hour. So that is normal. And intervals between the consecutive period of rest should not exceed 14 hours. That is normal. यहाँ तक MLC और STCW सेम है. अब आता है जो फर्क आता है, ये यहाँ से शुरू होता है जो STCW में ऐड है, दैट इज एक्सेप्शंस. तो इसको मैं आपको चार्ट से समझा दूंगा दोनों के एक्सेप्शंस क्या है. सो एक्सेप्शंस फ्रॉम रिक्वायर्ड आवर्स ऑफ रेस्ट जो है should not be less than 70 hours in 7-day period. That is exception. अब एक्सेप्शन में क्या है इसका डायग्राम से आपको समझा दें. डायग्राम फर्स्ट. तो एक्सेप्शन क्या है कि अगर हमने 1 हफ्ता एक्सेप्शन किया फर्स्ट वीक में, तो 2 हफ्ते हमें नॉर्मल पे लाना पड़ेगा. सो ट्वाइस ऑफ एक्सेप्शन टाइम को हम डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी फॉर नॉर्मल. तो ट्वाइस हो गया 140. तो 140 वाला तो 2 ही पीरियड आएगा, 2 वीक्स आ जाएगा नॉर्मल का, विच 77. तो पहला हफ्ता अगर हमने एक्सेप्शन किया, 70 आवर्स ऑफ रेस्ट दिया, तो 2 हफ्ते में 77 आवर्स ऑफ रेस्ट देना है. एंड देन वी कैन कम बैक टू द एक्सेप्शन ऑफ 70 आवर्स. अगर हम 2 हफ्ते लगातार एक्सेप्शन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है. 2 हफ्ते अगर लगातार कंसेक्यूटिव रेस्ट दे रहे हैं, तो 4 हफ्ते हमें नॉर्मल टाइम देना पड़ेगा, 77 आवर्स पर वीक फॉर योर रेस्ट. उसके बाद ही हम एक्सेप्शन 70 आवर्स दे सकते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तब हम एक्सेप्शंस पे आएंगे. दोनों समझ आया है डायग्राम? इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लो. इसी के बेसिस पे आपके रेस्ट आवर्स बनाते हैं चार्ट पे, बिकॉज एक्सेप्शंस आर इंक्लूडेड हियर.
आते हैं। So these exceptions shall not be extended for more than 2 consecutive weeks. तो 2 हफ्ते लगातार हम exception 70 hours नहीं दे सकते। Second point आता है interval between 2 periods of exception should not be less than twice the duration of exception, जो अभी मैंने दिखाया था in the diagram. Not less than twice the duration of exceptions. तो इसका twice कर दिया, तो 2 हफ्ते हमने लगातार नॉन एक्सेप्शन किया। तो अगर हमने 2 हफ्ते एक्सेप्शन किया तो ट्वाइस ऑफ दैट इज 4 हफ्ते हमने नॉन एक्सेप्शन का किया, दैट इज नॉर्मल 77 आवर्स ऑफ रेस्ट। नाउ एक्सेप्शंस एक और इसमें तीसरा पॉइंट है, रेस्ट पीरियड को हम 3 रेस्ट आवर्स को हम 3 पीरियड में मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं इन एक्सेप्शन। नॉर्मली हम 2 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 पीरियड में एक 6 आवर्स होगा, एक नॉट लेस देन 1 आवर होगा, और तीसरा जो हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा 3 घंटे। अदरवाइज नॉर्मली हमारा एक था नॉट लेस देन 6 आवर्स, दूसरा हम 4 घंटे का देते। तो यहाँ एक 6 घंटे का होगा और एक नॉट लेस देन 1 आवर, और फिर तीसरा हो जाएगा आपका 3 आवर्स। इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ रेस्ट शैल नॉट एक्सीड 14 आवर्स, जैसे नॉर्मल में था। एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 2 24 आवर पीरियड इन 7 डे पीरियड। तो 7 डे में 2 दिन हम 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं रेस्ट, बाकी पीरियड हम 2 पीरियड में डिवाइड करें। 2 24 आवर्स कंसेक्यूटिव नहीं लिखा, एनी 2 डेज 24 आवर्स में 7 डे पीरियड में एक्सेप्शन दे सकते हैं फॉर द 3 पीरियड ऑफ रेस्ट। उससे आगे हम नहीं कर सकते, उसके आगे हम 2 पीरियड ऑफ रेस्ट। तो इसके जनवरी 2012 में ये आ गया, सीफरर्स हैव टू साइन रिकॉर्ड ऑफ रेस्ट वर्क आवर्स टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद मिनिमम रेस्ट आवर्स। अब इन केस ऑफ इमरजेंसी यू नीड नॉट मेंटेन द रेस्ट आवर्स। नॉर्मली अगर हम कोई सपोज बोट एंड फायर ड्रिल देते हैं, सो वी ट्राई टू गिव कंपनसेशन फॉर दैट। बट अगर कोई इमरजेंसी आ गया, जैसे हैवी वेदर आ गया, या ऑयल स्पिल हो गया, या कोलिजन हो गया, या ग्राउंडिंग हो गया, या फायर हो गई, तो इमरजेंसी है, उसमें सबको बुलाएंगे डेक पे, उसमें कोई रेस्ट आवर्स नहीं होगा। दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेस्ट आवर्स। सो दैट इज ओवरराइडिंग ऑपरेशनल कंडीशन, and they should be interpreted only as essential shipboard work which cannot be delayed for safety or environmental reason or which was not anticipated in commencement of voyage। जैसे अगर एक सुनामी आ गया, अब now that is not anticipated, that is sudden, वो वेदर रिपोर्ट में आता नहीं है, उस टाइम जो भी होगा that will not be included in rest hours। So it should be noted that masters, firefighting, lifeboat drills prescribed by national laws, regulations and international instruments should be conducted in manner that minimize the disturbance of rest periods, and for that compensation देंगे। Otherwise, other emergencies, contingencies, there will not be any rest hours. That will be overridden। तो यही दिया है, enter your work hours if the vessel complying with hours, yes, then no further, if not complying then you have to consider drill as rest hours। तो ड्रिल टाइमिंग को हम रेस्ट आवर्स नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ड्रिल टाइमिंग जो है दैट इज नॉर्मल, बट इसके लिए हम कंपनसेशन देंगे। अदरवाइज इमरजेंसी हो गया तो उसके लिए रेस्ट आवर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डैमेज ऑफ एनी और एनी अदर अनडिजायरेबल इवेंट, and it's a combination of likelihood and consequences of specified hazard, so it's a measure of harm or loss associated with an activity। hazard का मतलब है कि it's already there, but that doesn't mean that hazard is a risk unless it's got a probability and consequence। तो आपका ओपन मैनहोल इज एन हैजर्ड, बट जब तक कोई उसमें गिरे ना तब तक वो रिस्क नहीं है। कितनी बार वो रिस्क हो चुका है, कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका है, दैट बिकम्स प्रोबेबिलिटी, एंड उससे कितना हार्म हो गया, दैट बिकम्स कॉन्सिक्वेंस। सो फॉर एनालाइजिंग रिस्क यू हैव टू सी वेयर द रिस्क इज एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या है।
हैजर्ड क्या है? It is an inherent characteristic of material condition or activity that has a potential to cause harm to people, property and environment. फॉग हमारा एक हैजर्ड है, बट वो रिस्क तभी होगा जब एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी हाई है एंड जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हाई हैं या लो, डिपेंड। सो लाइकलीहुड का मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी है या फ्रीक्वेंसी है कि कब कब वो एक्सीडेंट क्रिएट करेगा। So it is a frequency is a measure of the rate of events occur in a year. That is कितनी बार ये event हुआ है, कितने इंसिडेंट पर साल हुआ है, कितने डेथ्स हुए हैं इसकी। सो प्रोबेबिलिटी होती है जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, दैट इज द रेट ऑफ इवेंट measured as a fraction of total number of events, that is 1 in a million. Consequence means direct effect of that event or incident on an accident. It is expressed as maybe death, injury, exposure, property loss, environmental effect, evacuation, spill, all that will be consequence. Now, what is a hazard analysis? That is how you identify the material properties, system elements that could lead to harm or loss. So the term includes evaluation of consequences from an event or incident. That is, suppose एक्सीडेंट हो गया तो उससे क्या क्या आपका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, दैट विल बी हैजार्ड एनालिसिस। तो अगर सपोज आपका फॉग है तो उसका एनालिसिस में उससे क्या क्या आपके इवेंट हो सकते हैं या एक्सीडेंट हो सकते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ हैजार्ड। रिस्क एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिस्क इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई सो दैट इट कैन बी मैनेज। तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा वेदर इट्स अ लो रिस्क और मीडियम रिस्क और हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क, we cannot manage it because हम कंट्रोल मेजर्स नहीं लगा सकते जब तक मालूम नहीं कि रिस्क है क्या। तो जो रिस्क असेसमेंट हमारा ISPS कोड में आया है, दैट बेसिकली इज टू डिटरमाइन आपका रिस्क कंटेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंपैरिजन क्या है इफ यू कंपेयर टू रिस्क, एंड सिमिलर रिस्क क्या है एंड हाउ यू कंट्रोल दोज रिस्क। So you have a quantitative risk analysis जिसमें आप measure करोगे frequency, probability and consequences of a risk. So in practice, a sophisticated risk analysis requires extensive data, which is expensive. So if your risk is very high, then you can't control it because उसके लिए control measures बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, which might not be viable. So then you have to leave that activity. So a few decisions require sophisticated quantification of frequency and consequences. Now you have relative risk analysis when you are comparing the risk with another risk. So here you are using appropriate available data, and that will lead to exposure, frequency and the consequences of that loss or the severity of the loss. So now we come to what is risk management, how you manage your risk. देखो वो रिस्क तो है, अब हम कोविड में बाहर निकलते हैं, यू आर मैनेजिंग योर रिस्क, आप मास्क पहनते हो, सैनिटाइजर यूज करते हो, सो दैट इज हाउ यू कंट्रोल योर रिस्क, अदरवाइज रिस्क तो है। तो जहाज भी आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या होंगे, एप्लीकेशंस ऑफ पॉलिसी, प्रैक्टिस एंड रिसोर्सेज टू द असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क अफेक्टिंग योर ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर आप को देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है तो आप मैनेज कैसे करोगे, आप SCBA पहन के जाओगे, सो यू आर मैनेजिंग योर रिस्क। केमिकल टैंकर्स हैं तो आप PPE पहनोगे बराबर एज पर MSDS टू मैनेज योर रिस्क। So critical role of a safety regulator is to identify activities involving significant risk and establish an acceptable level of risk. अगर बहुत हाई रिस्क है और हमने कुछ मेजर्स किया या कंट्रोल मेजर किया कि हम रिस्क लेवल को लो कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, तो हम वो काम करेंगे बेसिस द कंट्रोल मेजर। अगर हम कंट्रोल मेजर नहीं लगा सकते तो वो काम ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब कहोगे जीरो रिस्क है तो जीरो रिस्क तो हो ही नहीं सकता। इवन आफ्टर वेयरिंग PPE एंड आफ्टर वेयरिंग SCBA भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जीरो रिस्क तो है नहीं।
अब ऐसा फ्लीट में हुआ था कि उस चीफ ऑफिसर ने एसयूवी भी पहना था, पीपीई भी पहना था, बट फिर भी मर गया वो। सो जीरो रिस्क नहीं है, इवन आफ्टर यू हैव ऑल योर कंट्रोल मेजर्स, फिर भी कोई ना कोई रिस्क है। आपने चाहे सेफ्टी लाइन लगाई, हो सकता है पार्ट कर जाए, तो रिस्क तो है। आप बंगी जंपिंग करते हो, आप सारे फैक्टर्स लगाते हो, फिर भी लोग मर जाते हो उसमें। कई बार आप पैराशूट से जंप करते हो एयरक्राफ्ट से, सारे फैक्टर मेजर्स लगाते हो, लेकिन फिर भी रिस्क है, पैराशूट ही नहीं खुलता, बात बंदा खत्म। सो रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन जीरो रिस्क कैन बी वेरी कॉस्टली एंड कैन नॉट बी अचीव। So acceptable level of risk for regulation exemption is established by consideration of risk, cost benefit and public comments. Cost benefit का मतलब है कि अगर आपके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो फिर वो काम करके फायदा नहीं, क्योंकि बेनिफिट आपका कुछ है ही नहीं। तो अगर कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाए रिस्क को कम करने के लिए, काम ही नहीं करो वो वाला। प्लस पब्लिक कमेंट्स। So relative or comparative risk analysis most often used when quantitative risk analysis is not practicable or justified. तो अगर उसको एनालाइज करने के लिए बहुत पैसा लग रहा है, तो एक रिस्क को दूसरे रिस्क के साथ कंपेयर करके देख लो, वो बेटर है। सो रिस्क असेसमेंट इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पर्सनल, फाइनेंशियल और मटेरियल, so that you can achieve your objectives of organization. So risk analysis और assessment basically risk management का एक vital part है, और इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो परमिट मिलेगा ही नहीं ना जब तक आप रिस्क असेसमेंट ना करो, क्योंकि परमिट तो तब है जब आपने रिस्क असेसमेंट किया, तभी आपको परमिट मिलेगा काम करने का। रिस्क एनालिसिस असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग वेरियस रिस्क that an activity is exposed to, both in terms of consequence and occurrence. कब कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, और क्या सिविरिटी है, या आपकी उंगली कटी या खरोच आई या हाथ कट जाने का डर है या बंदे की जान जाने का डर है, उसके बेसिस पर सिविरिटी मापी जाएगी। नाउ ऑपरेशन ऑफ शिप इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो एनवायरमेंट में आप देखोगे कि भाई वर्किंग अलॉट करने की बात कर रहे हैं, वेसल सेल कर रहा है, एकदम काम सी है, लेकिन सडनली आफ्टर हाफ एन आवर देखो तूफान शुरू हो गया। सो इट बिकम्स अनप्रिडिक्टेबल एंड hostile. So you can have catastrophic losses due to cyclone, hurricanes, tidal waves, tsunamis, as well as risk due to human error. And that is the reason you have to identify and analyze कि ये रिस्क हैं क्या, एंड इसको कैसे काउंटर और न्यूट्रलाइज किया जाए। सो इसके लिए हमें पीरियोडिक रिव्यूज करने पड़ेंगे एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, सो दैट आप देखोगे इसका इफेक्टिवनेस क्या है। एंड ये नहीं कि रिस्क आपके खत्म हो गए, नए रिस्क आ रहे हैं, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि नए रिस्क क्या है। अगर आप सोचते हो कि आपका रिस्क असेसमेंट में वही आइटम पॉइंट्स चेक करें और नए रिस्क को आप इंक्लूड नहीं करो, तो हो सकता है आपका खतरा ज़्यादा बढ़ जाए। आपने हो सकता है सारी गैसेस चेक की, वो उस टाइप की गैसेस आपने चेक नहीं की, या ड्रगेटिव यूज़ नहीं किया उस गैस के लिए, तो हो सकता है वो गैस आपको ख़त्म कर दे। So shipping industries में you got to manage a lot of kinds of risk, because आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट से और ज़्यादा आपके वेदर चेंजिंग हो रही है, एंड जितना सोफिस्टिकेशन हो रहा है उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आप सोचते हो कई बार कि 4 आर्म्ड इज 4 वांट, ठीक है, बट कई बार आपका हो जाता है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा, एंड यू ट्राई टू डू शॉर्टकट्स, और उसके बाद आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आफ्टर डूइंग ऑल योर कोर्सेज, ऑल योर सेफ्टी कोर्सेज, इवन नाउ यू हैविंग ऑल दोज एक्सीडेंट्स गोइंग ऑन, टैंक में एंट्री कर रहे हैं, कैडेट मर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग शॉर्टकट्स। कहते हो भाई इससे तो कुछ होगा नहीं, क्या फायदा। तो आपने कहा ये तो पढ़ाई हो गई, हमारा कोर्स हो गया, हमने COC गेन कर ली, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारा कुछ बाल नहीं बांका होगा, और वहीं खत्म हो गए। सो risk is not going to see your certificates. Risk will be there, and if you think that your certificates or courses can help you, it's not your confidence but your thinking can help you. Overconfidence can lead to your accidents.
So risk may be defined as an uncertainty or lack of knowledge concerning the outcome of events. That is the risk of vessel becoming a total loss. Hazard है कि condition that increases the likelihood of loss like poor visibility. तो poor visibility है, अगर आपने radar यूज किया, foghorn यूज किया, तो आप अपना रिस्क कम कर रहे हो। अब हाई स्पीड है, अब फॉग में हाई स्पीड चलो तो हो सकता है कोलिजन हो जाए, तो आप अपना स्पीड भी कम करोगे अगर बहुत ज़्यादा फॉग है तो, प्लस आप लुकआउट्स को बढ़ाओगे। ऑल दोज थिंग्स यू आर गोइंग टू ट्राई टू रिड्यूस योर रिस्क। पेरिल क्या है? इट इज अ कॉज ऑफ लॉस। जैसे आग है, वो पेरिल है, और वो पेरिल क्या है? काफी ज्यादा लॉस करा सकती है। रेन है, वो भी पेरिल है, क्योंकि अगर आपका हैच खुला रह गया तो वो रेन आपकी पेरिल बन गई, बिकॉज दैट कैन बी कॉज ऑफ लॉस ऑफ योर कार्गो। रिस्क रिस्पॉन्स इज an organization wishes to respond to assessed exposure to risk. So the response may be acceptance or avoidance of the risk and consequence. Decide on way how to treat the risk acceptable, though they may be undesirable. तो आप उसको लेवल को कम करोगे by your control measure to reduce the level of risk. टाइम क्या हुआ? टाइम 15 मिनट। So treatment is always at a cost, and that may involve reducing the exposure, transferring the risk, or retaining it, or a judicious mix, so that आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले एट मिनिमम कॉस्ट। अगर आपने कॉस्ट बढ़ा दिया रिस्क को कम करने के लिए इतना ज़्यादा कि आपका प्रॉफिट नील बटा सन्नाटा हो, तो उसको तो काम करोगे ही। तो वो रिस्क ट्रीटमेंट तभी है जब आपका कॉस्ट उसका कम हो। नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क आप करते हो कि आपको आग लग जाएगी या आपका ग्राउंडिंग हो जाएगा, तो आप उसको इंश्योर कर दोगे। हम अपनी कार को इंश्योर करते हैं, भाई रिस्क है, भाई टक्कर मार दे, खरोच कर दे, एक्सीडेंट हो जाए, थर्ड पार्टी को मार दे, तो थर्ड पार्टी डैमेज का भी इंश्योरेंस इंक्लूड होता है। सो यू आर ट्रांसफरिंग अ रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनीज के भाई हाँ भाई आपका रिस्क उसको कवर कर दे। अच्छा, अगर सपोज एक आपको चलो लॉ का क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज आपका जहाज, सपोज यू आर बर्थिंग एंड जहाज ने जेट्टी को मार दिया, जेट्टी पे क्रैक आ गया और वहां से क्रेन गिर गई, और वो क्रेन गिरने से 2 बंदे जेट्टी पे मर गए। अब इसको कैसे कवर करोगे? कौन से इसमें कैसे, कौन सा क्लॉज आएगा इंश्योरेंस का? क्या इसको इंश्योरेंस क्लॉज मिलेंगे, ये कोई कन्वेंशन में है जो उसको कवर करता है? किसको मालूम है? फिर से एग्जांपल दूं? नहीं सर। हाँ तो बताओ। आपके जहाज ने जट्टी को मारा, जट्टी टूट गई, अब वो क्लेम जो करेंगे जट्टी वाले, और जो शोर क्रेन गिर गया उसके ऊपर 2 बंदों के ऊपर, वो मर गए, तो वो किस डैमेज के अंदर आएगा? किस वो जो कंपनी करेगी आपको किस क्लॉज के अंदर आएगा? डॉग लेबर कन्वेंशन है कौन सा? नो क्लेम, पीएनआई। डॉग लेबर सर, डॉग लेबर। डॉग लेबर में नहीं आता। थर्ड पार्टी सर। थर्ड पार्टी के लिए उसका नाम बताओ मुझे। एमएलसी सर। हैं? एमएलसी ना, ना ओरल में जाओगे एमएलसी बोलोगे तो जाओगे। आंसर बताओ, या अगली क्लास में पूछूं फिर से? ढूंढोगे आंसर? आज नहीं बताता, 26 जनवरी के बाद। तो ये लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर मैरीटाइम क्लेम्स जो आया था, आपकी लायबिलिटी को लिमिट किया गया है अगर आपकी फॉल्ट नहीं है। क्योंकि आपका हो सकता है, आपने क्या बोलते हैं, पैसेंजर शिप पे बिल गेट्स साहब, उसको उसकी चोट लग गई, हाथ टूट गया, तो आपके ऊपर तो इतना क्लेम आ जाए कंपनी डूब जाएगी। तो दिस इज फॉर बेसिकली लाइफ एंड पर्सनल इंजरी, जिसमें क्लेम्स भी आएगा, प्रॉपर्टी टू डैमेज टू अदर शिप्स, प्रॉपर्टी और हार्बर वर्क, सब कुछ आएगा। इन सब के लिए आपकी लायबिलिटी सेट होती है। सो इसमें ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड होती हैं। सैल्वेज, जनरल एवरेज, ऑयल पोल्यूशन जो सीएलसी में आता है, नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस को
नहीं इंक्लूड किया जाता, या क्लेम बाय मेंबर्स ऑफ क्रू एंड सर्वेंट्स ऑफ ओनर। जैसे आप जो एमएलसी है, आपके जहाज पे किसी को चोट लगी तो वो एमएलसी पे आएगा, पीएनआई क्लब देगा। या रेक रिमूवल क्लॉज है, वो भी इसमें नहीं आएगा। तो जो भी आपके शिप से दूसरे को डैमेज हुआ है उसका क्लेम इधर आएगा। चलो ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब पैसेंजर शिप ने जेट्टी ठोक दी और पैसेंजर मरे, अब वो कौन से क्लेम में आएगा? पैसेंजर शिप ने जेट्टी ठोकी और पैसेंजर अंदर में मरे, अब वो कौन से क्लेम में आएगा? पीएनआई में। इसमें आएगा। ये इसके लिमिट्स हैं एलएलएमसी के, पैसेंजर ये सब एसडीआर में है। अब एक और आपका लॉ है, और जो आपका एक पैसेंजर वेसल डूबा था, कप्तान भाग गया था, याद है? गर्लफ्रेंड के साथ पहले भाग गया। हाँ, कॉन्कॉर्डिया भाग गया था वो सबसे पहले। अब उस पे क्लेम्स कैसे आए? क्योंकि उसमें तो फॉल्ट मास्टर की थी ना। आप बताओ कौन से क्लेम्स आएंगे? 4 मिनट हैं, तो आप तो लॉ में फेल हो जाते हो। लॉ में पकड़ अच्छी नहीं है, नहीं? बता दें क्या? अभी ढूंढ सकते हो? अब तो ये अटेम्प्ट कर सकते हो ना, 4 मिनट हैं। यार इतनी पढ़ाई की, सेकंड ऑफिसर बने, सेलिंग की, इसका तो आंसर बता सकते हो ना। सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करना। भाई पैसेंजर शिप सपोज अग्राउंड हो गया, और अग्राउंड होने में 2 पैसेंजर पानी में गिर गए और मर गए, झटका लगा वो पानी में गिरे मर गए। अब किधर से क्लेम दिए जाएंगे? कौन कन्वेंशन पे दिए जाएंगे? यहां तो एलएलएमसी था, तो इसमें एलएलएमसी लागू होगा, सीएलसी लागू होगा, क्या होगा? इसमें मैरीटाइम लॉ लगेगा। हाँ, क्या चीज? कौन सा क्लॉज? एथेंस क्लॉज लगेगा। पैसेंजर पाल, इसको एथेंस कन्वेंशन 1974 कहते हैं, और इसको पाल कहते हैं, पैसेंजर एंड लगेज कन्वेंशन। क्योंकि अगर आपका लगेज भी डैमेज हो गया तो उसको पाल में लिया जाएगा, एथेंस कन्वेंशन 1974। ये देखो कॉन्कोर्डिया है जो लाइट हाउस के पास डूब गया था, तो बाउंसर तो मिल गया। अब तो 2 क्वेश्चन आपको पता लगे कि अगर ओरल में पूछे तो क्या कर सकते हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको। आई एम नॉट टीचिंग यू इन दिस। तो आपका जो लिमिट है वहीं तक करा रहे हैं, ये सब नहीं आपको करा रहा। कैश कैप तो आपको कराया हुआ था ना। चलो आज ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? अभी ब्रेक ले लेते हैं।